بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ پاکستانی اخبارات کو دیکھیں تو اچھی خبر یا پازیٹیو خبر جو ہے اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنی بھی خبریں موجود ہوتی ہیں تمام ہیجان انگیز ہوتی ہیں، مگر ان تمام خبروں کے بیچوں بیچ ہم نے ایک ایسی خبر ڈھونڈی ہے جو کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اچھے دنوں کی نوید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبر فیز 2 کے حوالے سے ہے، سی پیک کے، اور آج سی پیک فیز 2 کا ایک جائزہ اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو متعلقہ ادارے تھے ان کے سیکرٹریز اور سربراہان بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ کے بعد احسن اقبال نے جو میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی اس میں یہ کہا کہ چند ماہ میں چین کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان متوقع ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فیز 2 میں اس سے پہلے ہم جو ہے ورکنگ پیپرز تیار کر لیں، اور جتنے بھی اس کے اندر پارٹیسپینٹ تھے ان کو ہدایت کی گئی کہ اس فیز 2 کے اندر 5 نئی راہداریوں یا 5 نئے کوریڈورز کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ممکنہ طور پر ہمارا ہوم ورک ہو سکتا ہے وہ ہم مکمل کر لیں، تاکہ جب چین کے وزیر اعظم پاکستان آئیں تو ان کو یہ ورکنگ پیپر جو ہیں وہ پیش کیے جا سکیں اور اس کے اوپر پھر کوئی آگے پیش رفت ہو سکے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار علی مہتو صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ذوالفقار صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ کب تک دورہ پاکستان متوقع ہے چینی وزیر اعظم کا، اور کیا لگتا ہے کہ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو پائے گا، جبکہ جو فیز 1 ہے ابھی تک اس کے یعنی جس طرح سے ہم نے سوچا تھا کہ اس کے ثمرات سے ہم مستفید ہوں گے، ہم مستفید تو نہیں ہو پائے ہیں؟ جی بالکل شیخ صاحب، ایکچولی آپ نے بالکل بات صحیح کہی ہے کہ جو جس طرح مستفید ہمیں ہونا چاہیے تھا، جو توقعات تھی، جو گیم چینجر اس سی پیک کو کہا جا رہا تھا، اس کے ثمرات تو پاکستان کے عوام کو نہیں ملے، بلکہ الٹے جو پاور پلانٹ سی پیک کے تحت جہاں پر لگے ہیں ان کی کیپیسٹی دے دے کے پاکستان کے عوام جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔ خاص طور پہ چائنیز کے جو سی پیک کے پلانٹ ہیں، جہاں سائیدوال میں لگا ہے اور میری بہادر شاہ میں لگا ہے، جنگ میں لگا ہے، کراچی بن قاسم میں لگا ہے، تو اس ان کے جو 4-5 پلانٹ ہیں ان کی کیپیسٹی ہماری پہنچ سے بہت زیادہ باہر نکلی ہوئی ہے، اور گیم چینجر تو تبھی ہو سکتا ہے جب یہ جو آپ 5 نئے کوریڈورز کا کہہ رہے ہیں یہ ان پلیس ہوتے ہیں۔ مطلب سڑکیں ہم نے سی پیک کے تحت پوری بنا لی ہیں، ہم نے پاور پلانٹ پورے کے پورے لگا دیے ہیں، لیکن جو اس کے تحت ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز لگنے تھے، جو انڈسٹری لگنا تھی، جو ایکسپورٹیبل سرپلس پاکستان کے اندر کریٹ ہونا تھا انڈسٹریل، اور جو چائنا کی انڈسٹری یہاں پہ شفٹ ہونا تھی، اس کا تو انتظار ہے اب، کیونکہ پاکستان کے اندر اب 46,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی تو موجود ہے، انفراسٹرکچر تو کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو انڈسٹری آئے، سی پیک کا فیز 2 چلے تو پاکستان کو اس کے ثمرات سامنے آ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ذوالفقار صاحب، جو فیز 1 ہے وہ تو محض ایک روڈ انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر ہماری بسیں جو ہماری ٹرانسپورٹ چلتی رہتی ہے، لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اس سے یعنی جس طرح سے ہم مستفید ہو سکتے تھے، فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ اب تک نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی وجہ شاید فیز 2 ہے کہ فیز 2 میں اس کے ارد گرد انڈسٹری لگے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن یہ سارا سلسلہ تو بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کے سیاسی حالات ہو سکتے ہیں، یا اس کے کوئی اور جو عوامل ہیں وہ کار فرما ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل شیخ صاحب، آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ ہاتھ لگایا ہے۔ پاکستان کے پچھلے 5-6 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی جو ہے وہ یہ معاملہ تو آگے بڑھتا ہے امن کے ساتھ۔ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی چڑیا ہے جو ذرا سا پتا ہلنے پہ اڑ جاتی ہے، تو یہ چڑیا جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھی ہی نہیں ہے، اور جو بیٹھنے کی کوشش کرتی رہی ہے، وہ نیچے جو دھرنے تھے، جو مظاہرے تھے، جو آگ تھی، جو جلاؤ گھراؤ تھا، جو 9 مئی تھا، اس کو دیکھ کے مجھے آپ بتائیے ایک عام آدمی کے پاس اگر 10,000 روپے بھی ہے نا تو وہ پیسے اس وقت لے کے نکلتا ہے جب باہر امن ہو کہ یار کوئی چھین نہ لے۔ تو جو اربوں ڈالروں کی آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ جہاں آگ لگائی جا رہی ہو، جہاں پہ دھماکے کیے جا رہے ہو، جہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ ننگا ناچ ناچ رہے ہو، تو وہاں کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلی شرط پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ ان کا اس میں کیا مقصد ہے، اگر وہ انسٹیبل کرتے ہیں پاکستان کو تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے نا، اس نقصان کو روکنا ہے تو اس کو روکیں گے تو بالکل صحیح۔ اچھا ذوالفقار صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے
اس کو رول بیک کیا یا اس کے اوپر فل سٹاپ لگایا یا اس کے اوپر جو بھی کام ہو رہا تھا سی پیک فیز 2 کے حوالے سے اس کی رفتار سست کی، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ یہ تاثر دیکھیں سسٹر نے کیا کرنا تھا، وہ کام تو سارا سرکے تو احسن اقبال اپنی پچھلی گورنمنٹ میں بنا گئے تھے. اب تو جو پاور پلانٹ تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں انسٹال ہو رہے تھے، لگ رہے وہ لگ گئے، لیکن پی ٹی آئی نے جو اس کا ریلوے کا پارٹ تھا نا، جو ML1 جسے کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی نے نہیں ہونے دیا، وہ پی ٹی آئی نے روکا ہے. یعنی وہ اس کے درمیان میں کانٹریکٹ ہو سکتے تھے، اگریمنٹ چل سکتا تھا آگے جا رہے، تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی ML1 کو روکا تھا. یہ مجھے پتا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ میں ریلوے کور بھی کرتا ہوں، اس کے اوپر میں نے کئی خبریں بھی دی ہیں. تو یہ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں اب وہ ریلوے کے مفاد میں تھا پروجیکٹ یا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہونے نہیں دیا. اگر یہ ہو جاتا ہے سارا کچھ، اور یہ جب تک فیز 2 نہیں ہوتا تو ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی. ہم نے یہ جو سڑکیں بنائی ہیں یہاں پہ کاریں چلانے کے، ٹرک چلانے کے تھوڑی بنائی ہیں، ہم نے تو یہ ایکسپورٹیبل مال بنانے کے لیے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کراچی کے سمندر تک اور گوادر کے سمندر تک وہاں سے جہازوں کی ایکسپورٹ کے لیے بنائی ہے. اور جب تک یہ سڑکیں وہ انڈسٹری لگے گی تب تک یہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی، تو پھر ہم اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے. بالکل سی. اچھا، یہ جو 5 نئے کوریڈورز بننے جا رہے ہیں ان کے نام تو بہت کیچی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا گروتھ ہے، دوسرا اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، تیسرا انوویشن ہے، چوتھا گرین اور ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اور پانچواں جو ہے وہ لائیولیہڈ کوریڈور ہے. یہ سارے کے سارے بہت خوبصورت نام ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ یہ کنورٹ ہو؟ یہ پانچوں میں نے پڑھے ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ احسن اقبال صاحب کی. یہ پانچوں اصل میں اکنامک کوریڈور کا حصہ ہیں، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، نئے کوریڈور کوئی نہیں ہے. بھائی یہاں پہ آپ انڈسٹری لگائیں سب سے پہلے، تاکہ گروتھ اسی سے انڈسٹری سے ہونی ہے نا. تو گروتھ کے لیے ہمارے پاس بجلی تو موجود ہے، باقی چیزیں آپ ڈالیں اس کے اندر. گورنمنٹ لینڈ بھی دے رہی ہے، ایریاز بھی ایئر مارک ہوئے ہوئے ہیں، ہر شے تو ہوئی ہے، لیکن صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، سارا کچھ کھا رہی ہے. ساری چیزیں، ساری پلاننگ، ساری پاکستان کے انویسٹمنٹ اور پاکستان کا تمام انفراسٹرکچر، پاکستان کی تمام پلاننگ، ساری منصوبہ بندی صرف ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کھائی جا رہی ہے. اچھا، یہ کتنا ضروری ہے کہ موجودہ حکومت اپنا ٹرن اوور مکمل کرے، ورنہ یہ جو فیز 2 کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہ بھی یعنی بیچ میں رہ جائے گا؟ نہیں، یہ کرنا پڑے گا. یہ چاہے گورنمنٹ جیسے بھی کرے، چاہے سفک کرے، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان کرے، یا پاکستان کی آرمی کرے، پاکستان کے اندر استحکام جو ہے وہ پہلی کنڈیشن ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی. ادروائز دیکھیں نا، پاکستان نے سروائیو کرنا ہے یار. یہ ملک جو ہے کتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے. اب اس کے لیے تو اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا کہ کس کا سیاسی مفاد کیا ہے. اس کے اوپر تو سخت ہاتھ ڈالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں ڈالنا بھی چاہیے. پاکستان کے تمام اداروں کو مل کے اس دہشت گردی کو اور اس سیاسی میں استحکام کرنے والوں کو، پیدا کرنے والوں کو نا جیل کے پیچھے ڈال دینا چاہیے، ورنہ پاکستان نہیں چل سکتا. صحیح. چینی وزیر اعظم کی آمد جو ہے وہ پاکستان میں متوقع ہے. یہ یعنی چھوٹا اوکیزن نہیں ہوتا جب بھی چین سے ڈگنیٹریز پاکستان آتے ہیں. میں چینی پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کے اندر بڑی ساری انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. پاکستان ان سے یہ 2-3 چیزیں مانگ رہا تھا کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ابھی جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اورنگزیب گئے تھے اور ساتھ میں اویس لغاری گئے تھے فارن منسٹر. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کم کر دیں، جو چائنا کے نئے بجلی گھر لگے ان کے حوالے سے. تو اس کے چین کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ ری نیگوشیٹ میں جاتے ہیں یا اگریمنٹ ریوائز کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کرنا پڑیں گے، تو ہم آپ کو دوسرے طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. وہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کو $3 بلین کا لون دیا ہوا ہے اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا آلریڈی. یعنی پاکستان کو انہوں نے کہا ہم ادھر سے آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، ادھر سے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اب چینی پرائم منسٹر جب آئیں گے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کسی کھاتے میں جا کے نکلیں گی. اور سب سے بڑا جو وہاں پہ بریک تھرو ہوگا جس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنا کی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو کے پاکستان کے اندر آنی ہے نا، اس کا چائنیز پرائم منسٹر جو ہے وہ آ کے یہاں پہ اعلان کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے EPZ میں، یعنی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں اور نئے انڈسٹریل ایریاز میں جو چائنا کی وہاں سے انڈسٹری آئے گی اس کے حوالے سے. بالکل صحیح. اس سے یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے جتنے بھی مقامی ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ان کو تو یقینی طور پہ ان کی کھپت ہوگی، ان کو روزگار ملے گا. وہ شیخ صاحب گروتھ کا حصہ دیکھا نا، یہی تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں گروتھ اورینٹڈ. گروتھ اب جو بجٹ بنا ہے وہ پاکستان کا گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بجانے کا بجٹ ہے. تو اس کے اندر تو ساری قربانی غریب عوام کی جو ہے، پاکستان کے جو 25 کروڑ کی پاپولیشن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سفید کوئی تقویٰ بھی اب غریب ہو چکا. تو یہ 22 کروڑ تو وہ کھڑے ہیں، 23 کروڑ بلکہ آپ کہیں کہ غریب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں
पाकिस्तान के अंदर। ये सारे कुर्बानी दे रहे हैं तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जा रहा है, ये छोटा काम नहीं हुआ। पाकिस्तान का देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ शेख साहब, पाकिस्तान के अंदर 38% इन्फ्लेशन रेट हुआ है, 38%, और लोगों की चीखें निकल गई हैं, खुदकुशियाँ हो गई हैं, बहुत कुछ। और अगर डिफॉल्ट हो जाता तो श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ 70% इन्फ्लेशन रेट था, तो क्या क़यामत आती है अगर 70% डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान रेट इन्फ्लेशन रेट होता। बिल्कुल सही। इस बात को डिफॉल्ट से बचना और बचाना ये बड़ा जरूरी है, ये पाकिस्तान को बचाने वाला काम है। इसके अंदर सबसे बड़ी सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कुर्बानी में बहुत है, लेकिन पाकिस्तान अब डिफॉल्ट से तो बच गया ना। बिल्कुल सही। जुल्फकार साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हालिया बारिशों के नतीजे में जो इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे हमारे। जी वेलकम बैक। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात करते हैं जो कि इस वक्त बारिशों के नतीजे में बरपा हुआ चाहते हैं। ना सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। दुख की बात यह है कि सैलाब ऐसा नहीं है कि इस बार आ रहा है या इस बार आया चाहता है, हर साल सैलाब आता है और उस सैलाब के नतीजे में हम अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी तबाही देखते हैं, बहुत सारी बर्बादी देखते हैं, इंसानी जानें चली जाती हैं, मवेशी चले जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचता है। मगर जो अफसोस की बात है या जो दुख की बात है वो ये है कि हम इसका कोई तदारुक नहीं कर पाते हैं। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ पहले से मौजूद हैं जुल्फ़कार अली महतू साहब। जुल्फ़कार साहब, ये पीडीएम में क्या कर रहा है जिसका मकसद ही इस तरह की जो कुदरती आफात है उनसे निपटने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना, कुछ इस तरह के काम करना ताकि इसकी कोई रोकथाम की जा सके, ये तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए शेख साहब, पीडीएम के काम को पहले समझिए। पीडीएम का काम है रिलीफ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये डिजास्टर जब हो जाता है तो उसको मैनेज करती है। इसका काम डिजास्टर रोकना, फ्लड कंट्रोल करना नहीं है। ये लोगों को असल में ये पता ही नहीं है कि किसका क्या किरदार है। और वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो तूफान मचा हुआ है बदतमीजी का, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत डैमेज कर रहा है। वो पाकिस्तान के लोगों को, दिनों को खराब कर रहा है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि असल में खराबी कहाँ पे है। खराबी है इस बात में कि फ्लड एक्शन प्लान था जो 2019 में जो जब गवर्नमेंट आई थी पीटीआई वालों की, तो इनको ये दिया गया था, पेश किया गया था कि आप अगर फ्लड एक्शन प्लान पे इस पे अमल नहीं करेंगे, कोई 200-300 अरब रुपए का मनसूबा था, तो आपको पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ये मनसूबा ये था कि आपने जो दरिया के रास्ते हैं, जो इंडस रिवर है, जो केपी से इधर काबल रिवर है, जो चतराल है, तो दीगर रिवर यहाँ पे केपी के से बलूचिस्तान से निकलते हैं और आगे फिर पंजाब और सिंध और फिर बलूचिस्तान को आगे तक जाते हैं। इनके रास्ते क्लियर करने, इसके अंदर जो इंक्रोचमेंट है वो क्लियर करनी ताकि पानी का फ्लो निकले और वो सीधा समुद्र अपना दरिया में, बड़े दरिया में आए, कैंदी में आए और फिर समंदर में जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंक्रोचमेंट, कब्जे ये सारे दरियाओं के रास्ते में मौजूद है। अब आपको मैं असल बात बताऊं कि ये फ्लड तो आया ही नहीं है पाकिस्तान के दरियाओं में, तो अभी फ्लड आया ही नहीं। अभी तो ये सारा जो है ये अर्बन फ्लडिंग कराती है जो बारिश की वजह से हुई है। अभी तो पहाड़ों से पानी नीचे उतरा ही नहीं, जो पिछले 2000 ये अर्बन फ्लडिंग की जो यानी उसे कंट्रोल करने के हवाले से ये सूरत हाल है कि हमारी जितनी भी मशीनरी है, जितने भी इदारे हैं, वो सारे के सारे बेबस हैं। लेकिन अगर पहाड़ों से आने वाले पानी जो है उसके जरिए से कोई सैलाब आए तो फिर क्या हो, और हमने देखा है माजी में उस हवाले से भी हम लोग। मैं आपको बताऊं, मैं आपको शेख एक मिसाल देता हूं कि 2023 में या 22 में, मैं भूल रहा हूँ साल को, पर ये जो हमारा दरिया काबल है इसके अंदर तकरीबन कोई 3 लाख क्यूसेक पानी आया। इसका हाई फ्लड शुरू हो जाता है कोई 1 लाख क्यूसेक से, तो उसमें एक्सेप्शनल हाई फ्लड है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें उसके रास्ते में आई ना, जो काबल रिवर को उसने उड़ा के रख दी सारी, सवाल से लेकर ऊपर तक। और इंडस की जो ब्रांचेस है वहाँ पे ऊपर केपीके में, उसने जो तबाही मचाई। और यार ये सारा कुछ शेख साहब, अभी तो इसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें हैं। 52 झील की मैंने समा टीवी पे खबर दी थी कि ये बम है बर्फ के, ये जब फटेंगे तो उसके ऊपर बारिश हो रही होगी, नीचे ये फट जाएंगे ग्लेशियर्स, और ये नीचे जो फ्लड आएगा दरियाओं में, ये बहा के ले जाएगा समंदर तक सारी चीजों को, दरमियान में आने वाले को। तो इसकी एक वही फ्लड मिटिगेशन प्लान है और फ्लड कंट्रोल एक्शन प्लान है जिसको अब गवर्नमेंट कर रही है। इस बार बजट में
PRDP में फंडिंग भी थोड़ी सी हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई। बिल्कुल सही जुल्फकार साहब, लेकिन ये क्या रवैया है? मसलन ये कि हम सारा साल ये कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर खुश्क साली है, मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पानी नहीं है, ज़राअत मुतासर हो रही है, और अचानक 1-1.5 महीना ऐसा आता है कि हमसे पानी नहीं संभाला जाता, और हम इस हवाले से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कि पानी को स्टोर कर लें या उसको कोई मुनासिब रास्ता दे दें। पाकिस्तान के और यार यही तो रोना है शेख साहब, असल में बंदा कहाँ जाकर रोए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए हैं जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास है। 135 मिलियन एकड़ फीट स्वीट वाटर है और उसका 40 मिलियन एकड़ फीट हमने पिछले साल समंदर में फेंका है, उससे पिछले साल 52 मिलियन एकड़ फीट फेंका है। तो 1 मिलियन एकड़ फीट के जब पानी इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए तो उससे $2 अरब की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है। ये दुनिया का ये थंब रूल है, ये आम प्रिंसिपल है। इसका मतलब हुआ कि $80 अरब का पानी हमने समुद्र में फेंक के यहाँ पे $2 अरब के लिए आगे जो है ना वो घुटने टेके हुए हैं, रगड़ा खाया हुआ है। तो ये हम कौम किस तरह बनेंगे? मतलब यही तो क्वेश्चन है कि ये $40 बिलियन का पानी समुद्र में हम क्यों फेंक रहे हैं? ये पानी जब समुद्र से निकल जाएगा, समुद्र से की तरफ जाके आखिरी उसका जो लहर होगी वो जारी होगी तो इधर खुशहाली का ऐलान हो रहा होगा कि आपकी रबी क्रॉप के लिए हमारे पास 27% पानी कम है। तो ये मतलब ये प्लानिंग तो है पाकिस्तान के अवाम को, खासतौर पे इसमें पाकिस्तान के अवाम ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातें, और सियासी जमातें भी कौन थी? वो लोग जो कालाबाग डैम की मुखालफत करते आ रहे हैं सिर्फ सियासत की वजह से। कालाबाग डैम ना बनाया तो सिंध में आपको आज आपकी खबर दे रहा हूँ, ये आपका ये प्रोग्राम इस बात का गवाह होगा कि मैंने ये बात बता दी है कि सिंध के कालाबाग ना बना तो काबल रिवर का जो पानी आता है वो दरिया सिंध के साथ मिलके सिंध को तबाह करता रहेगा जब तक ये कालाबाग डैम नहीं बनेगा। नहीं तो उस हवाले से फिर कंसेंसस किस तरह से क्रिएट हो? जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास तौर पे जो केपी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन के पीपल्स पार्टी है, वो भी उसकी फेवर में नहीं है। देखिए वो असम्बलियां बगैर सोचे वहां पे ये ब्रीफिंग हो चुकी है, सब चीजें होती है। इन तमाम सियासतदानों को एक जगह बिठा ले। मैं आपको शर्त लगाता हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। काबल रिवर का पानी सिंध दरिया के साथ मिलके सिंध में तबाही फैलाता रहेगा, जो उसने 3-4 साल पहले बनाई है, जिसका आज मुराद अली शाह कह रहे हैं कि मैं उनकी बहाली के लिए नए घर बना के दे रहा हूँ। वो कितने घर बना के देंगे आप? ये तबाही तो आपको होती रहनी। काबल का पानी कालाबाग में रोकना पड़ेगा, वरना दोनों पानी मिलकर तबाही कर देंगे आपकी। 12 लाख 14 लाख क्यूसेक पानी अगर दरिया सिंध का गुड्डू में दाखिल होगा ना तो मुझे संभाल के दिखाइए, संभालते हैं आप। कच्चे के इलाकों को तो वो तबाह करेगा, ऊपर भी चल जाएगा। तो ऊपर से अगर बारिश हो रही है उन दिनों में तो फिर आप कैसे सिंध को बचाएंगे? गरीब आदमी को तबाह करके बाद में कहते हैं कि उसको मकान बना के देंगे। सही। अच्छा, आम आदमी के हवाले से तो ये बात समझ में आती है कि उसे इतना शऊर नहीं है, वो पानी को ज़ख़ीरा कर सकता है और ना ही पानी को ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। पानी का जो असराफ है उससे भी वो वाकिफ नहीं है। मगर गवर्नमेंट के अंदर तो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड लोग बैठे होते हैं। नहीं उन्होंने बनाया सब कुछ। मैं कह रहा हूँ ये प्लान, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, मैंने भी वो प्लान पढ़े हैं ना, प्लानिंग कमीशन में पढ़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में पढ़े हैं। तो मेरे पास तो वो सारी चीजें, वो डॉक्यूमेंट है जो माहिरीन ने तैयार किए हैं। सियासी बिल नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात से सोचना पड़ेगा। अगर पंजाब से कोई चाहती है कि कोई फेवर उसको मिले पॉलिटिकल, तो पंजाब के अवाम को कालाबाग डैम उसको बना के देना पड़ेगा। नहीं बना के देंगे तो सिंध डूबेगा। फिर पंजाब के अवाम देखेंगे कि लो तुम हमें तो साउथ पंजाब को तो डुबो गए हो, अब तुम्हारा भी गुद्दू से नीचे तो बुरा हाल है, अब बताओ क्या करें। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा जब सिंध मुतालबा करेगा कि कालाबाग डैम फौरन बनाया जाए, सारे खर्चे रोक के कालाबाग डैम बनाए। तो ये क्योंकि वो डूब रहे हैं उन्होंने बार-बार। और जाहिर है कि ये कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन कुछ जो है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिक्स करती हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि अगर ये कालाबाग डैम बन गया तो सियासी जमातें छोड़ दें, सिंधी इंजीनियर्स को बिठा लें, वापडा के रिटायर्ड सिंधी इंजीनियर और वापडा के हाजिर सर्विस सिंधी इंजीनियर, उनको कोई फैसला कर दो, जो फैसला करेंगे कबूल होगा। करके दिखाए वो कालाबाग के खिलाफ किस तरह फैसला। अंदर कहते हैं, मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो यहाँ पे GM लेवल पे वापडा में रहे हैं, सिंध में जाके बस गए रिटायरमेंट के बाद, लड़काना में रहते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर थे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहते थे कि यार हमारे हाथ बंदी है। एक सिंधी इंजीनियर ने, जिसके ऊपर आपको पता सिंध को एहतजाज करता रहा, ये जो चश्मा से निकली कनाल है ग्रेटर थल पे बड़ी एहतजाज मुजाहरे पूरे सिंध में कराते रहे। वो जो है वो जुनेजो साहब थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है,
जुनेदो साहब उसके पीडी थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उसके चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने बनाई है। तो मैंने उनको वहां हाजी कोर्ट में पूछा खुशाब में कि जनाब आप सिंध इंजीनियर है, आप ये सिंध के खिलाफ नहर बनाओ कि यार आपको किसने कहा ये सिंध के खिलाफ है, ये पंजाब का अपना पानी है और फ्लड में लेना है उन्होंने। जब फ्लड आ रहा होता है पानी तो सिंध को डुबो रहा होता है, तो ये नहर ले लेगी तो इसमें सिंध का कहाँ नुकसान, और पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब के हिस्से से इसने कट जाना है। तो बस ये बातें हैं। तो मैं आपका खुर्शीद जुनेदो नाम मुझे याद आ गया, तो खुर्शीद जुनेदो ही बात है। ठीक है, तो ये तो शेख साहब हालत है, मैं कह रहा हूँ सिंध इंजीनियर बिठा के फैसला कर लो। सही। अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट भी है, वो माहौलियाती तब्दीलियां हैं जिनके नतीजे में ज़्यादा बारिशें होती हैं और कभी बारिशें नहीं भी होती हैं, खुश्क साली का जो दौरानिया वो लंबा हो जाता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर आपकी नज़र से कोई स्टडी गुजरी है कि जिसमें हमने माहौल के हवाले से जो तब्दीलियां हैं उनका मुतालिया किया हो? क्योंकि पाकिस्तान ख़ित्ते में उन ममालिक में शामिल है जहाँ यानी माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में असरात बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जी बिल्कुल, हम शिकार हैं सब दुनिया का वो वर्स्ट मुल्क है जो इन माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार हुआ है। देखिए अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, पाकिस्तान का वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। लाहौर में कभी पानी जो है वो 30-35 फुट पे निकलता था, अब वो पानी 100-150 फुट पे जाके निकलता है। तो कितना डिटोरिएशन हुई है। पंजाब के अंदर बेशुमार इलाके आते हैं जहाँ पर 200 फुट पे पानी है, 250-300 फुट पे पानी है, 300 फुट से भी ज्यादा है साउथ पंजाब के अंदर, 300 फुट से भी ज्यादा, 300 फुट से भी ज्यादा पानी। तो मुझे बताइए वो नेचर है, वो बारिश होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और जिन दिनों में आपको चाहिए होगी बारिश, उन दिनों में नहीं होगी, जिन दिनों में नहीं चाहिए होगी उन दिनों में होगी, तो वो फ्लड करेगी। तो यही तो रोना है सारा पाकिस्तान के हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान के तमाम जो सिविल सोसाइटी है उसको, पाकिस्तान के उन लोगों को जो समझदार हैं, तबके हैं, और पाकिस्तान के वो दबे दिल रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स जो की पोजीशन पर बैठे हैं, वो डट गए तो फिर किसी सियासी जमात की क्या जरूरत है। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग है वो भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है। उस हवाले से भी जो हमारा मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो लोगों को वार्न नहीं करता, उन्हें खबरदार नहीं करता। ये हम किस तरह से यानी ये खबर देने वाला निज़ाम बेहतर बना सकते हैं ताकि जो भी पेश गोई आए वो सच्ची साबित हो? ये नहीं बात, वो बर वक्त बताते हैं जितना उनके पास निज़ाम है या कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो खबर सही देती हैं। लेकिन अब नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो 300 से ज्यादा टेलीमीटर सिस्टम लग रहे हैं पाकिस्तान के दरियाओं पे, मेजर पे और ट्राइब्यूटरीज पे। वो बताएंगे कि दरिया में पानी है, दरिया के पानी का तो आप बता सकते हैं। अब बारिश के पानी का तो आप ये नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी बारिश होगी भाई, तो गरज चमक के साथ जो है वो फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। ये बार बार बता रहे हैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। अब इसका क्या हाल है? बारिश ऊपर से बरस रही है तो क्या करोगे आप? आपके पास क्या हाल है? आपके पास हाल ये है कि अगर लाहौर शहर में बारिश होती है, सड़कों में पानी खड़ा होता है, तो आप पंप करके तो दरिया नाली में फेंक दें, तो पंप चल रहे होते हैं दुनिया भर में। पेरिस में मैंने देखा है शेख साहब के 7-8 घंटे में पानी निकलता है। अब यहाँ पे हमारे बाल साथी जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो पानी में खड़े हो जाते हैं बारिश के दौरान ही और कहते हैं देखें पानी खड़ा निकल रहा है। यार पानी हो जाएगा वहाँ में, या पानी जमीन में 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के नीचे जमीन में सम जाएगा। तो ये एक रियलिटीज को, ग्राउंड रियलिटीज को और सिस्टम को समझना चाहिए। वरना पाकिस्तान में तो ये एक्सीडेंट जो है वो जमजम का एक्सीडेंट मैं ऐसे कहूँगा और मीडिया का एक्सीडेंट कहूँगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये फेक न्यूज़ सही। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? हम लोग देखते हैं कि आए दिन जो है वो लोग बिजली की तारों के साथ लग के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और ये यानी सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं। यार मैं कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है आप अपने लोगों को, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं कि बेटा बारिश के दिनों में इन जगहों पे खतरा होता है, खंभे के पास से नहीं गुजरे। पहले हमारे दफ्तर स्कूलों में लिखा होता था दीवारों पे कि वो बारिश के दिनों में वो बॉल चॉपिंग कर देते थे, इसके पास से नहीं गुजरना। यार ये पता है सबको, लेकिन लापरवाही है। जब मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, इस कौम को कहाँ पे खड़ी हो गई है, क्या सोचने लगी है, एक ही बात के गिर्द घूम रहे हैं, एक ही बात के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का, असातिज़ा का और जो हमारे मौलवी हज़रात हैं जुमे के खुतबों में वो बताएं लोगों को कि यार अमन, सुकून, भाईचारा और आपस में मिलजुल के रहना ये इस्लाम है और इसके अंदर ही हमारी सलाह है। अच्छा जुल्फकार साहब, ये जो वाटर मैनेजमेंट है और फिर ये जो कुदरती आफात से निपटना है, ये सिर्फ सूबों की जिम्मेदारी है या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी उनको सपोर्ट करे? देखिए, जो
फ्लड जब आ जाता है ना, उसके ऊपर फिर सारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती है वो फेडरल भी इदारा है और चारों सूबों के अंदर भी है, इसके शाखें हैं। अब डिजास्टर से पहले की जो है ना प्लानिंग, वो फेडरल गवर्नमेंट के खासतौर पर पानी के हवाले से वापदा की जिम्मेदारी, वाटर का तमाम जो सेक्टर है उसको वापदा ने ही इम्प्लीमेंट कराना है, और उसको इम्प्लीमेंट कराने के बाद जो है वो सूबों को उनके ज़रूरियात के मुताबिक साथ मिलाना है। यानी एक मुश्तरका कंपोनेंट है, ये एक पैकेज है जिसके अंदर फेडरल वापदा और चारों सूबों के इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्होंने मिल के प्लानिंग करनी है कि हमने लोगों को फ्लड से, खासतौर पर दरियाओं के फ्लड से कैसे बचाना। दरियाओं का फ्लड ज़्यादा खौफनाक होता है, ये अर्बन फ्लडिंग होती है 6-7 घंटे बाद, किसी को याद भी नहीं रहता कि पानी खड़ा था, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। असल मसला दरिया की फ्लडिंग है जो फसलें खा जाती है, जो आपकी इकॉनमी को ले जाती है 1-1.5 महीने के अंदर। अच्छा, ये जो यानी जो सैलाब आते हैं उससे जो सबसे ज़्यादा तबका मुतासर होता है वो किसान होते हैं, और उनकी जानें चली जाती हैं, उनके घर बार, उनके घर टूट जाते हैं, उनके मवेशी बह जाते हैं, फसलें खड़ी तबाह हो जाती हैं। मगर यानी जिस तरह से उनके हक में आवाज़ उठाई जानी चाहिए वो उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आती। हम देखते हैं कि जितने भी रिलीफ के काम होते हैं, जो लोग रिलीफ के कामों में मुलव्विस होते हैं या अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनके नंबर्स बन रहे होते हैं, उनकी वाह हो रही होती है, मगर वो जो मसला है वो वहीं खड़ा रहता है, और अगले साल या अगले चंद सालों बाद फिर वो सैलाब आता है और उसी तरह से नुकसान पहुँचाता है। शेख साहब, मैं अब पहले भी कह रहा कि कहाँ कहाँ का रोना रोए। ये देखें, ये एक पूरा करप्शन का सिस्टम है। ये जो फ्लडिंग है ना, पहले फ्लड आता है और फ्लड आके फिर तबाही फैलाता है, और फिर उसके ऊपर रिलीफ का काम शुरू होता है, उसकी फंडिंग होती है, उसके ऊपर देगे पकते हैं बिरयानी की, कैंप लगते हैं 50 दिनों के फ्लड के, और वहाँ पे फिर उनके ऊपर सरकारी अरबों रुपए खर्च होते हैं, और फिर उसके बाद वो अगले साल फिर तैयारी होती है कि फिर करें। और यार पहला कसूर उन लोगों का है जो दरिया के पैने में बैठे हैं। दरिया के पेट में जाके बैठोगे तो फ्लड नहीं आएगा तो और क्या आएगा। वहाँ पे क्या जरूरत है डेरे बनाने की, वहाँ पे क्या जरूरत है गांव बसाने की, वहाँ पे क्या जरूरत है आपको फ्लड के सीजन में फसलें लगाने की। ये सारी तबाही फिर जब फसल टूट जाती है तो वो कहते हैं जी कि हमें आप आफत अदा करा देंगे, हुकूमत पंजाब या हुकूमत सिंध या KP या फेडरल गवर्नमेंट या बलोचिस्तान हमें मदद दे। और यार इसको क्लियर कर दें दरिया के रास्ते को। दरिया के रास्ते डिफाइंड है, हर सूबे के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं कि दरिया के रास्ते में आबादी या दरिया के रास्ते में फसलों की काश्त आपका अपना रिस्क हो सकता है, भैया आप इसको नहीं डाल सकते। तो क्या किसको आप रोएंगे। पहले तो ये काम ही गलत होता है, दरिया के रास्ते में पहले में बैठेंगे तो फ्लड नहीं आना, तो वहाँ पे क्या और क्या फूलों की बारिश हो रही, तो ये इनका अपना कसूर भी है। बिल्कुल सही। अच्छा जुल्फकार साहब, एक और छोटे से मौजू की तरफ आते हैं। इस वक्त मरियम नवाज जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, हम देखते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं बहुत कम आ रहे हैं, और फोकस किया हुआ है ख़ास तौर पे जो सेहत का शोबा है। अगरचे सेहत के शोबे के अंदर बहुत सारा काम होने वाला है, जितना भी काम किया जाए यूँ लगता है कम है। तो आप उनकी इस वक्त जो परफॉर्मेंस है उसे आप किस तरह से एवेल्यूएट करते हैं? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि अभी जो सूबे हैं वो अमीर हैं, वफाक गरीब है, उनके पास पैसा काफ़ी है। पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसा है, उन्हें 45 अरब की बिजली पे सब्सिडी 2 महीने की दे दी है। दूसरे सूबे तनकीद कर रहे हैं, उनके पास भी पैसे बहुत है। मैंने अभी 2 दिन पहले स्टोरी दी है कि कितना कितना पैसा किस किस के पास 1 जुलाई 2024 को सरप्लस था। काफ़ी था। KP के पास भी 56 अरब रुपए थे सरप्लस। तो रोना रोते हैं तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो फिर स्टेट बैंक में वो पैसे किधर से आ गए। झूठ बोलते हैं सब लोग। मैं कह रहा हूँ कि आप मरियम नवाज की कारकर्दगी को मैं इससे लेता हूँ कि जब पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में सुकून आया है, हमारे लिए जीना आसान हुआ है, तो ये कारकर्दगी होती है। और बाकी पोलिटिकल लीडर की क्या कामयाबी होनी है। तो अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले जो मुझे हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी और अस्पताल में जाने का इत्तेफाक, कुछ पेशेंट की मैंने ट्रीटमेंट कराना थी। आप यकीन करें कि वहाँ पे हालात ये थे तो पेशेंट जो है वो उसको हम उधर नहीं रख सके, हम निकल गए, क्योंकि ये था कि वहाँ पे अभी ऑपरेशन थिएटर अपग्रेड हो रहे हैं, तो इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा खतरा है वहाँ पे कि वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मशवरा दिया कि भाई इनके पास ना जा, ये निकल जाओ लेके तुम्हारा पेशेंट जो है ना। प्राइवेट पैसे फिर हमने जैसे भी अरेंज किए तो प्राइवेटली वहाँ पे ऑपरेट कराया, लेकिन प्राइवेट वाले भी बहुत कसाई बैठे हुए हैं। जो 2 रुपये वाला काम है वो 200 में कर रहे हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि वो किस तरह से
तो ये दुकानें हैं। बिल्कुल सही, लेकिन उस हवाले से गवर्नमेंट भी क्या करे? मतलब जब डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ी सख्ती की जाती है, उन्हें किसी नज़्म में लाने की कोशिश की जाती है, वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, अभी भी सड़कों के ऊपर है। गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा होना है, तो प्राइवेट अस्पतालों को बंद करा दे इस तरह से कि सरकारी अपग्रेडेशन अस्पतालों की ऐसी हो कि अमीर आदमी भी प्रेफर करे कि मैंने जो है वो सरकारी में इलाज कराना है, क्योंकि इतने अरबों रुपए के रिसोर्सेज प्राइवेट वालों के पास नहीं होते। वो उतनी मशीनरी महंगी नहीं लगा सकते जितनी महंगी मशीनरी गवर्नमेंट के अस्पतालों में लगी होती है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको साथ साथ लेके चलना, उसको अब जो आपके पास सिस्टम लग गया है उसको मेंटेन करना है। यानी ऑपरेशन थिएटर अगर अपग्रेड हो गया इंटरनेशनल लेवल पे तो उसकी मेंटेनेंस रहनी चाहिए, उसी तरह से रहे। अब ये मॉनिटरिंग का निज़ाम है, ये ख्वाजा सलमान रशीद को, ख्वाजा इमरान नज़ीर को पंजाब में करना चाहिए। कैमल शाह अपना मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया है, तो अच्छा किया है, उन्होंने मेंटेन किया है, उसको कॉपी करना चाहिए पंजाब को। अच्छा, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम सराह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि 3-4 माह के अंदर कोई इस तरह के यानी बड़े इक़दामात और उनके नतीजे में कोई बड़ा फ़र्क नज़र आए। ज़ाहिर है कि अब जिस तरह से आगे बढ़ेंगी, इनएक्सपीरियंस भी हैं, और ज़ाहिर है कि उनके घर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि पहले इस ओहदे के ऊपर बराजमान रहे हैं, उनसे भी मुशावरत वगैरह। लेकिन जो एक समत होती है वो आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर यानी लंबे अरसे तक सर्व करें, अपना टर्नओवर पूरा करें, तो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगी? काम तो कर लेंगे यार, उन्हें अभी तक तो देखे वो उनका एक्टिविटी तो नजर आ रही है ना, वो दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि उनका क्या उसके दिन में है। लेकिन बहरहाल जो सामने की एक्टिविटी है ग्राउंड पे वो काम तो कर रही है। बारिश में सलाद में भी जा रही है, लोगों के घरों में भी जा रही है, पुलिस की डांट डपट भी कर रही है, हेल्थ वालों को भी देख रही है। तो बहरहाल एक लीडर के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं समझता हूँ कि वो जो कर सकती है इस माहौल में, जो अपने आप को करने की कोशिश कर रही है, सब तोड़ कोशिश। क्योंकि पंजाब ने मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में मुस्लिम लीग को बचाना है। अगर पंजाब की बेस को वो रीगेन कर गई, उन्होंने कब्जा छुड़वा लिया पीटीआई से पंजाब का, तो फिर नून लीग खड़ी हो जाएगी। वरना अगर पंजाब हाथ से निकलता है तो फिर निकला हुआ था पहले भी, अब भी निकला हुआ है, तो फिर कहाँ खड़े होंगे? केपी में तो नहीं जीतते, ना सिंध में जीतते, ना बलूचिस्तान में जीतते। आपने देखा लाहौर के अंदर बड़ी रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं पिछले यानी 1-2 हफ्तों के अंदर, और फिर आपने ये भी देखा कि चंद घंटों के बाद पानी जो है वो गायब हो जाता था। जी हाँ, नहीं ये पानी मैं आपको बताऊं कि ये पानी कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, कुछ इलाके हैं ऐसे वैसे वो होते हैं, वो हाँ। वो हर जगह पे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे पानी देर से निकलता है, जल्दी निकलता है। तो लाहौर में तो सबसे बड़ा जो स्पॉट था ना वो था लक्ष्मी चौक, जो 1970 से लेकर वो डूबा ही रहता था। यानी जरा सी बारिश हुई लक्ष्मी चौक डूब गया। ये हम आप अखबार निकाल के देख ले कि बारिशों के दिनों में आपको आम सुर्खी मिलेगी पिछले 70 साल में। लेकिन अब वो मामला डिफरेंट है, लक्ष्मी चौक से पानी निकल जाता है, उन्होंने 2 ड्रेन बिछाई हैं अभी तक उनकी, तो निकल जाता है पानी, और भी सड़कों से निकलता है। या 6-7 घंटे का पानी का वेट करना चाहिए, ये इंटरनेशनल रसूल है। आप कहेंगे इधर बारिश हुई आधे घंटे बाद पानी गया मुझे, ये पहाड़ पे तो लाहौर है नहीं कि जब पानी साथ साथ नीचे जाता जाएगा। प्लेन पे है, चटील मैदान में है लाहौर वाकई, तो यहाँ पानी खड़ा होना कुदरती बात है, और कुदरत से कौन लड़ सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच जुल्फ़िकार अली महतू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। चंद साल पहले मेरी इरसा के चेयरमैन जमात अली शाह साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनके सामने यही सवाल रखा जो कि हर पाकिस्तानी का सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, और फिर ये जो सैलाब आते हैं तो ये क्या यानी फ़िनोमिना है, हम इसके पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो जमात अली शाह साहब ने मुझे जवाब दिया कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बिल्कुल किल्लत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि हम पानी को मैनेज करें। हमारे अंदर वाटर मैनेजमेंट की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, और ना ही हमारे पास उसकी यानी कोई कैपेसिटी है। तो जो चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो यही है कि वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, और वाटर मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है उसको बेहतर किया जाए। देखने का बेहद शुक्रिया।